हाजी साहब, आपकी जो फेज 1 स्कीम है थीम पार्क व्यू, उसमें काफी हमारे भाई पूछ रहे हैं कि बिजली के मसाइल काफी चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਨ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਖਤਮ होनी है। क्यों है कि जो आपके 11 से 12 माशाल्लाह फेज बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आप और नए शहरों में किस किस जगह पे जो है ना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और घर बनाकर देना जा रहे हैं आवाम को? ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 6 ਬਾਲ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ 6 ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रॉपर्टी नॉलेज ग्रुप से आपका भाई मोहम्मद इफ्तिखार एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं थीम पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम में। आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं हाजी खुशी मोहम्मद, जो कि थीम पार्क व्यू के ऑनर हैं। उनसे वो वाले सवालात पूछूंगा जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेजते थे कि बिजली के मसाइल और इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि हम इस तरह की मालूमाती वीडियो लेकर आते रहते हैं। व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं थीम पार्क व्यू के ऑनर हाजी खुशी मोहम्मद साहब के साथ बैठा हूं। आज उनसे हम वो वाले सवालात पूछने जा रहे हैं वो जो आप कमेंट सेक्शन में हमारे पास भेजते हैं। तो हाजी साहब, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? इंशाल्लाह जी। हाजी साहब, आपकी जो फेज 1 स्कीम है थीम पार्क व्यू, उसमें काफी हमारे भाई पूछ रहे हैं कि बिजली के मसाइल काफी चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਪਲਾਟ ਵੇਚਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਦਾ 30 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਆ, 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 32 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ 20,000 ਘਰ ਹੈਗੀ, 20,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 3-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਡ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੂਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 अरब रुपया दे रहे हैं, ਅਸੀਂ 1 रुपया जमा कराना है। जी अच्छा, मेरा यही सवाल था आपसे। दूसरा सवाल आपने खुद ही बता दिया। मैं सारे की जाएगा। जी 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 1 अरब रुपया जमा कराने जा रहे हैं, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਰੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਟੀ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ 5 ਅਰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਬਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ भी एजेंसी तो कर्जा ना लेने तो बावजूद एक स्कीम डेवलप हुई। क्या बात है। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपके माशाल्लाह फेज सुनने में आया 11 से 12 फेज आप बना चुके हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो मेरा ये सवाल है कि आप घरों का काम कर रहे हैं। आपका जो फेज 1 है, ये जिस तरह बाबू साहब है, आप किसी भाई के पास प्लॉट है उधर, आप उसमें घर बना देते हैं, आपसे लिया हुआ जिस भाई ने? बहुत अच्छा सवाल किया है। यही तो आपको इसकी टेक्निक समझ नहीं आई। एक आदमी प्लाट ले लेता है, पीछे किराए पे रह रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसाइल पैदा हो जाता है, उसके लिए सबसे बड़ा तूफान आ जाता है कि पहले तो उसने उधर किराए के पहले अपने बच्चों की खाना पाना देना है, फिर उसके बाद उसने उधर का किराया देना, फिर उसने उसकी किस्त देनी है। अब वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अगर वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया
आसमान मुंडे तो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो उसका जो ना जिंदगी जीवन जिंदगी जी ना तंग हो जाती है। जी जी ऐसे उसकी जिंदगी बहुत तंग हो जाती है। वो सोचता है कि मैं किराया देवा, बच्चों को पाला कि किस्त देवा। इस वजह नाल वो किस्त घट देंदा है। 2 महीने छाड़ की, फिर 1 दे गया, फिर 1 महीना छाड़ की, फिर दे गया। इनका तोड़ जोड़ लभन की वास्ते असी मैं कोशिश की कि असी उन्होंने घर बना के दे दीए, उतों उन्होंने जान छुट जाए किराए तो। आपदा उन्हें प्लाट से लिया, उन्हें घर बना के विच रहन लग पैन। वो पिछों जो पैसे उन्होंने किराए ते जाते हैं वो भी बच जान, फिर उन्होंने जी ना इधरों खुशी मिले। ये वास्ते जिन्नियां स्कीमां हैगियां ने, जड़ा वाला उकाड़ा हो गया, बाबू साबू हो गया, चुंग हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जिथे जिथे काला शिकागो साडी स्कीम हैगी है, उत्थे जिन्हां दे भाइयां दे प्लाट हैगे ने वो घर बनाना चाहते हैं, फौरी आ जाओ। उत्थे आके सानू सिर्फ एंट्री करा दो कि यह मेरा प्लाट है, यह मेरा घर है, इन्हां मैनू घर शुरू करा दो। असीं घर बना के कब्जा दे के उस तो बाद असीं उहदी किस्त शुरू करांगे। अच्छा हर साहब, मेरा एक और सवाल है, आप ये जो फार्म हाउस की कटिंग दे रहे हैं, क्या वाकई आप 1 लाख रुपए मरले के हिसाब से एक कनाल का फार्म हाउस दे रहे हैं, वो भी 20 लाख रुपए में 5 साल के आसान एक साथ में? ये बताएं फेज 1 में। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा काली साहब ने सवाल किया, माशाअल्लाह, जज़ा अल्लाह तुहानू देगा। जी जी कि ये गल वाकई जनवन हैगी कि असी जिहड़ा ना साडा मेरा शुरू तो लैके वैलफेयर जेन है, तो वैलफेयर ते मैं रहना, इत्थे मेरी जिंदगी ते इत्थे ही जाके वैलफेयर ते खत्म होनी है। क्योंकि सानू जिहड़ा रकबा महंगा मिलता, लेकिन असी वैलफेयर इस तो ही देने आ कि जिहड़ा लाहौर का रकबा है फार्म हाउसां वाला, और रिंग रोड के उत्ते जिहड़ा बिग रिंग रोड जा रहा हुण अजकल काला शिकागो नूं क्रॉस करना है, इन्हें इत्थों मराकियां तो चलना है, काला शिकागो जाना है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਨਾਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि वाकया जेन्युइन शय की है तो फैल बेचनी की है। क्या बात है। हर साहब, मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि जो आपके 11 से 12 माशाल्लाह फेज बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आप और नए शहरों में किस किस जगह पे जो है ना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और घर बनाकर देना जा रहे हैं आवाम को? सवाल तुसी बड़ा सही किया, लेकिन सवाल ना वो समझ के नहीं किया सवाल, क्योंकि ये करना चाहिए सी कि तुहानू किहड़ी जरूरत पेश आई कि बाकी शहरां दे विच जाके बाकी शहरां दे विच जाके तुसी जनाब आपदी जिंद नूं तंग ला के ते उत्थे जनाब स्कीम लै के ते घर बनाउण लगे। वो आपकी बात ये तुहाडा की मंशूर है, ये तुहानू सवाल करना चाहिए सी। चलो मैं तू छोटे भाई दे सवाल भी आप कर लेना, जवाब भी तुहानू देना। ये एक बड़ा है मामला, कदे तुसी अपने इर्द गिर्द अपने आस पास तुसी निगाह नहीं मारी। आपां मुसलमान नाते होने सारे काम करने, बड़े उमरे ते चले जाने, हज ते भी चले जाने, आपदे बालां नूं शॉपिंग भी कराने, सारा कुछ ही कराने, लेकिन कदे आसे पासे आपां निगाह नहीं मारी कि जिंदगी कैसे गुजर रही, गलियां दे विच किवें हालात गुजर रहे ने। इन्हें नज़र मारदे होया मेरी जिंदगी इसे तंगी दस्ती दे विच गुजरदी कि मैं वेखदा जो गरीब दा दुख ते वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुंदा। फिर मैं कहना कि या अल्लाह तू मैनू सेहत दिती है, तू मैनू ज़हन दिता है, तू मैनू हिम्मत दिती हुई है, तू मैनू हौसला दिता है, ते लिहाजा ये तेरा सारा कुछ तू मैनू तो फ्री दिता है। लिहाजा जिहड़ियां चीज़ां तू मैनू नेमतां फ्री दित्तियां ने, मैं इहदे तो इहनूं इस्तेमाल करदे होया लोगों का फायदा करा, ताकि मेरी अगे राह निजात बने। मुल्तान दे विच असीं तां गए कि उत्थे लोग मैं वेखे ने, ये गरीब आदमी वो चौधरी के घर बैठा है, उनके 6 बाल ने, चौधरी के नाल काम करते पे ने, वो 6 बालों तो काम करा के सिर्फ उन्होंने रैश दे रहा। और इस तरह ही मैं जाके पिंडी वेख्या ही, पिंडी मैं काम शुरू किया ही, पिंडी उत्थे लोगों को घर बना के दिते। लोग एक गरीब आदमी उनका प्यो वेच के लोग एंड ते किराए ते आए। उमन दुनिया बदलती रही, 10 साल 100 साल बाद बदल जाती, कोई मालक मकान बन जाता, मालक तो कोई किराएदार बन जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है। वो जो वेने आसी कि एक बंदा जगीरदार के तहत फसिया पिया, उन्होंने कढ़ के असीं लिया के स्कीम च आबाद करना चाहते हैं। साडा जिन्ने वड्डे शहर ने, यानी कि पाकिस्तान के 72 शहर ने, असीं 72 शहरां दे विच ही स्कीम बनानी है। और साडा विजन है नहीं है कि असीं कारोबार के ज़हन नाल जाने उत्थे, नहीं, ऐसा ज़हन नहीं है। ज़हन ये हुंदा कि एक आम आदमी, मैं अगले दिन जिहड़ा एक उत्थे प्लाट दिता उस बंदे नूं, उस बंदे दे 3 बच्चे ते 4 बच्चियां, 7 बच्चे उनके सिर्फ पाकपतन शरीफ दे विच एक चौधरी दे घर काम कर रहे सी।
ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰੇ 4-7 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਘਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆ ਰੈਸ਼ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੂੰ ਇਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿੰਦ ਛਡਾ ਰਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਸੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ 45 ਸਾਲ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे आपके जो तवज्जुल से जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कोई भी दोस्त आता है इस चैनल के तवज्जुल से आपसे प्लॉट लेता, आप स्पेशल उसे क्या डिस्काउंट देंगे हमारे चैनल के हिसाब से, वो बताएं। जी मैं तो गल बड़ा अहम सवाल कर ये देखें ना कि हम ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। जी 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 ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ सब तो ज्यादा यही है कि तुसी इन किराएदारों तक पहुंचाओ। जी बिल्कुल जरूर। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि हाजी साहब का इंटरव्यू करने का मकसद भी यही था कि जो लोग कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछते, हम डायरेक्ट हाजी खुशी मोहम्मद साहब से वो वाले सवाल पूछें जो कि इस स्कीम के ऑनर है, माशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। आखिर में आप के जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनसे कहें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नए आने वाले लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। लेकिन ये लफ्ज मैंने आ रहा नहीं है वैसे करना क्या, सब्सक्राइब कर दें, लाइक ये लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन ताम कर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब आपने वक्त दिया।